Good morning, everyone. So, children, today we are going to start our topic, that is factors and multiples. Here, in that chapter, we'll learn about the factors as well as multiples. Okay. So, when we finish that chapter, so you can easily learn how we find the factors of any number and how we find the multiples of any number. Okay. So, let's start our today's topic, that is factors. First, we'll learn about the factors. So, what is meant by factors? So, we'll say factors means it is an exact divisor. It is an exact divisor of a number. Okay. Example. Suppose I take here example 6. Okay. I want to find out the factors of 6. So how I can find? So first of all, we'll suppose take an example of, suppose I have a 6 chocolate. I have a 6 chocolate and I want to distribute that chocolate among 2 children. So when I divide that 6 by 2, so I get here, when I divide that 6 chocolate, okay, suppose I want to take here 6 chocolate, okay, chocolates, and I want to distribute this 6 chocolate into 2 children, between 2 children. So when I divide that 6, so I get here by 2, so I get here 3. It means that when, so 6 will say here 2 3s are, okay. Now first of all, we'll say when I want to give that 6 chocolate to a single boy, so I'll say here 1 multiplied by 6. Okay. Suppose I want to distribute that 6 chocolate among 3 children. So when I divide that 6 chocolates into 3 children, among 3 children, I get here 2 chocolate per student or per children. Okay. So here 6 is equal to, I'll say 3 multiplied by 2. Okay. So using this example, we can say the factors of 6, we can say 1, 2, 3 and 6. Okay. We'll say 1, 2, 3 and 6. Means when we have to find out the factors of 6, so we get 1, 2, 3 and 6. Okay. It means that कि 6 के जितने भी फैक्टर्स होंगे एग्जैक्टली उन सभी फैक्टर से हम इसको क्या कर पाएंगे, डिवाइड कर पाएंगे. तो जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा, व्हाट इज मीन बाय फैक्टर्स. सो फैक्टर्स मींस इट इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ अ नंबर. सपोज मेरे पास एक नंबर था 6, जिसको मैंने इन सारे नंबर से डिवाइड करके देखा. 1 के टेबल में भी 6 आता है, 2 के टेबल में भी 6 आता है और 3 के टेबल में भी 6 आता है एंड 6 के टेबल में भी 6 आता है. तो जो भी नंबर जिन दूसरे नंबरों से एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं, उन सारे नंबर्स को क्या बोलेंगे, उस नंबर का फैक्टर बोलेंगे. समझ आया. देन आफ्टर दैट, सपोज आई वांट टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ अनदर नंबर. सपोज आई से हियर फैक्टर्स ऑफ सेकंड एग्जांपल. दिस इज फर्स्ट वन. ओके, आई टेक सेकंड एग्जांपल. So second example, suppose I'll say here 16. Okay, 16. I want to find out the factors of 16. So how I can divide that 16 in different ways or various ways. Okay, suppose I'll say here कि I want to divide that 16 in different ways. So first of all, I'll say 16. So I want to multiply 1 into 16. Second thing, again I can divide that 16 in 2 groups. Now again I divide that 16 into 4 groups. Okay. Now I cannot divide that 16 in any different groups. So we'll say the factors of 16 is equal to your 1, 2, 4, 8 and 16 itself. So we'll say the factors of 16 is 1, 2, 4, 8
16 itself. Okay, so like that we can find the factors of any number. Got it? Now after that we'll see some conclusion about the factors or some facts about the factors. So we'll say here facts about the factors. Okay, facts of factors. First fact. So factor means, suppose we learn how we divide the number in different ways, and that numbers we can say these are the factors of that given numbers. Now here we'll see the facts about the factor. What is the facts? Okay, related with that factors. So for every number there is the first factor is 1. So we will say first factor of a number, any number, either it should be 1, 2, 3, 4 till 100 till 1000, because we know there is no end of any number. So we will say the first factor of a number or any number is always 1, is 1. कि किसी भी नंबर का फर्स्ट फैक्टर क्या होता है? 1 होता है. 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं, 1 से लेके 100 तक बोलो, 1 से लेके 1000 तक बोलो, कुछ भी बोलो, 1 से लेके जितना भी नंबर आप बोलोगे सारे के सारे नंबर 1 के टेबल में आ जाएंगे. इसलिए किसी भी नंबर का फर्स्ट फैक्टर क्या होगा? हमेशा 1 होगा. ठीक है. देन आफ्टर विल से, अभी हमने देखा था जैसे मैंने फैक्टर्स निकाला था. ठीक है, क्या निकालते हमने? सपोज मैं 12 के अगर फैक्टर्स निकालने जाऊं तो 12 किस किस के टेबल में आएगा? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, देन 3 4 जा 12 3 के टेबल में भी आता है, 4 3 जा 12 4 के टेबल में भी आएगा, देन 6 2 जा 12 6 के टेबल में भी आएगा, एंड 12 1 जा 12 12 के टेबल में भी 12 आएगा. मींस द 12 इट्स अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. सो विल से, अब देखो यहाँ पे काउंटिंग में पता चलेगा मुझे हाउ मेनी फैक्टर्स 12 हैज. 1 2 3 4 5 6. मतलब जो भी जिस नंबर के भी हम फैक्टर्स निकालना चाहते हैं वो सब कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं. कैसे होते हैं? सब लिमिटेड होते हैं. ठीक है, मतलब फैक्टर्स जो होंगे आपके फाइनाइट होंगे. सो वी कैन से फैक्टर्स आर फाइनाइट. फैक्टर्स आर फाइनाइट. सो विल से हियर सेकंड पॉइंट, फैक्टर्स आर limited. Factors are limited, or we can say finite. Limited के लिए एक और वर्ड क्या यूज कर सकते हैं हम? Finite. Factors are limited. That is finite. Third fact is there कि the last factor of any number. The last factor of any number is the number itself. Is the number itself. Got it? जैसे कि हमने देखा था कि किसी भी नंबर के आप फैक्टर्स निकाल लो, चाहे जो नंबर हो. ठीक है, किसी भी नंबर के हम फैक्टर निकाले. सपोज मैंने एग्जांपल लिया 10. अब मुझे पता है कि किसी भी नंबर का फर्स्ट फैक्टर क्या होगा? दैट इज 1. सो इजीली वी कैन से द फर्स्ट फैक्टर ऑफ 10 इज 1. 2 के टेबल से भी 10 इजीली डिवाइड कर सकते हैं. तो 2 के टेबल में 10 आ रहा है, तो 2 5 are 10. इट मींस दैट वी कैन से 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10. ओके, 2 का टेबल कितने टाइम बोला था आपने? 2 5 जा. इट मींस दैट 5 2 जा भी 10 होगा, तो 5 इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया. ओके, अब जैसे 1 के टेबल में 10 आया, 2 के टेबल में भी 10 आ रहा है, 5 के टेबल में भी 10 आ रहा है. Similarly, in 10th table there is also 10. So we can say 10 ones are 10. So the last factor of each and every number is the number itself. Got it? Like that we can write the facts about the factor. Okay. Then after we learn about the common factors. कि common factors क्या होता है. common factors, common का मतलब क्या होता है?
ये दो चीजें हमारे पास, उन दो चीजों में क्या कॉमन है, समानता क्या है, ठीक है, सिमिलरिटी क्या है, दीज आर दी कॉमन थिंग्स। तो हम दो चीजों में क्या क्या चीज समान है वो उसको निकालने का जो हमारा एक, ठीक है, वे है, उसी को हम बोलेंगे कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। देन विल से हाउ वी फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, ओके। नाउ लुक हियर, we'll say the next topic, that is common factor, common factors, okay, common factors। अब common factors किसके निकालना है, कैसे निकालना है, सब हम यहाँ पे अभी देखेंगे। So suppose मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे कि we'll take the example of, we have to find out the common factors of 12 and 16। We have to find out the common factors of 12 and 16, 12 and 16, okay। दो नंबर है हमारे पास, एक है 12, सेकेंड है 16। इनका हमको क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर्स निकालना है। So first of all we'll learn here how we find out the common factors of 12 and 16। So for that we need to write the factors of 12 as well as 16, okay। So here we'll write first factors of 12। और हमने अभी देखा था कि फैक्टर्स का मतलब क्या है एक्चुअली, कि इस नंबर को हम किस अलग अलग नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, वो सारे नंबर इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। और हमने अभी फैक्ट देखा था फैक्टर के बारे में कि किसी भी नंबर का फर्स्ट फैक्टर क्या होता है, 1। सो विल से 1 इज अ फैक्टर ऑफ 12। 2 के टेबल से भी 12 डिवाइड होता है, 2 6 जा, दिस इज आल्सो 12, सो 2 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ 12। ना 3 4s are 12, so these are also the factors of 12। now after that 4 3s are, so these also the factors of 12। now 6 2s are, so 6 also the factors of 12। now the last factor of any number, we know the facts about the factor, that is the last factor is the number itself। so we'll say the last factor of 12 is 12। got it, हमको 12 के फैक्टर्स मिल गए। now we'll write the factors of 16। now we'll say the factors of 16, okay। factors of 16 means we'll say the first factor of any number is 1, okay। the last second factor is, we'll say ki check it is divisible by 2 or not, so say the table of 2। so when we say the table of 2, so we know that 2 8 ja 16, it means that 2 also divisible, okay। so 2 से भी हम इसको divisible कर सकते हैं। now again 3 के टेबल में 16 नहीं आ सकता, 3 से 16 डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। but we know the next number is 4, so we know the 4 4s are 16, we'll say here 4 it's a factor of 16। then after that 4 then 5 then 6 then 7, not okay, तीनों में से कोई भी इसका फैक्टर नहीं है। then after 8, so 8 2s are 16, okay। we'll say here कि 8 जो है हमारे पास, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। then after 16, so ये सारे नंबर फैक्टर्स किसके रहेंगे, 16 के, और ये जो नंबर्स रहेंगे फैक्टर्स रहेंगे 12 के। बट एक्चुअली हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। हाउ वी फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, सो विल से हियर कॉमन फैक्टर्स विच इज इक्वल टू, इन दोनों में जो सेम है उन्हें हम बोलेंगे कॉमन फैक्टर्स। देखिए अब यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसको मैं सर्कल कर लूंगा। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसको भी हम सर्कल कर लेंगे। देन यहाँ 4, यहाँ पर भी 4 है, देन वी गेट हियर सर्कल। सो जो कॉमन निकल गए, हमें मिल गए कॉमन फैक्टर्स, क्या मिले, 1 2 and 4। so we can say that the common factors of 12 and 16 is 1 2 and 4। understood, okay। now after that we'll learn about मल्टीपल्स, we'll learn about the मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स क्या है, जैसे हमने फैक्टर्स देखा था, ठीक है, जैसे हमने फैक्टर्स देखा था, वैसे ही अब हमें पता करना है कि व्हाट इज एग्जैक्टली मल्टीपल्स, और मल्टीपल्स किसी भी नंबर के फाइंड कैसे करते हैं, ओके।
So we'll learn about today your multiples. मल्टीपल्स क्या होता है, ठीक है। सो मल्टीपल्स मीन्स कि व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी टू नंबर, सो द प्रोडक्ट वी कैन से इट्स अ मल्टीपल ऑफ दिस टू नंबर। ओके, सपोज व्हेन वी मल्टीप्लाई any two number, then its product is known as multiples of these numbers, ओके। सपोज मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा अभी दो नंबर्स को, एग्जांपल देखेंगे हम, ठीक है, कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2, आई नो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करने पे कितना निकलेगा, 3 2 जा 6। सो जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेंट। जिस नंबर से उस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट वी कैन से इट इज अ मल्टीप्लायर। ओके, इसको हम कहेंगे मल्टीप्लायर। ओके, मल्टीप्लायर। देन द आंसर ऑफ दिस टू number, when we multiply these two numbers, so we get the answer. So that answer we can say it's a product. And when we multiply in two number and we get some answer, so that answer exactly it's a multiple of that two numbers, multiple of these two number. So here we can say कि 6 is a multiple, 6 is a multiple of 3 and 2. 3 and 2. Got it? कि हम यहाँ बता सकते हैं कि जिस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे तो मल्टीप्लिकेंट बोलेंगे, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज मल्टीप्लायर। ओके, द आंसर ऑफ दिस टू मल्टीप्लिकेशन वी नो इट्स अ प्रोडक्ट, एंड दैट प्रोडक्ट वी कैन से इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and 2। जिस नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया आपस में, वो दोनों नंबर का ये जो प्रोडक्ट है क्या बन जाएगा, मल्टीपल बन जाएगा। अब हम देखेंगे आगे की ये मल्टीपल हम फाइंड आउट कैसे करते हैं अलग अलग नंबर्स के, ठीक है। सपोज एक मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पे कि राइट 4 multiples or we can say here write first 4 multiples of, ठीक है, 5। मुझे 4 मल्टीपल्स निकालना है। फर्स्ट 4 मल्टीपल्स किसके निकालना है, 5 के निकालना है। तो मुझे पता है कि 5 के मल्टीपल्स अगर मुझे निकालना है, ठीक है, तो जब दो नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे जो आंसर हमें मिलता है वो उस नंबर्स के क्या बन जाते हैं, मल्टीपल्स बन जाते हैं। तो व्हेन वी फाइंड आउट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स, सो फॉर फर्स्ट मल्टीपल we have to multiply this number with 1. So when I multiply that 5 with 1, I got 5. This is my first multiple. Okay, this is first multiple. When I multiply that 5 with 2, so I get here second multiple. Okay, second multiple. When I multiply that 5 with 3, so I got it 15. That is my third multiple. Okay. Now, and when I multiply that 5 with 4, so I got 20, and that 20 it's my last. It means that fourth multiple. Okay. Fourth multiple. So like that, you can find the multiples of any number.
एंड देयर इज नो एंड ऑफ मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का कोई एंड नहीं है। हमने देखा था फैक्टर्स लिमिटेड होते, बट मल्टीपल्स लिमिटेड नहीं होते। मल्टीपल्स आप जितने चाहे उतने फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज वी नो देयर इज नो एंड ऑफ नंबर्स। सो आप जितने मल्टीपल चाहे उतने किसी भी नंबर के फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करना हम स्टार्ट करेंगे, सो देन nth नंबर ऑफ मल्टीपल्स वी कैन फाइंड। गॉट इट? सो आज हमने जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। हमने पढ़ा सबसे पहले फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर क्या है कि इट इज द एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ अ नंबर, कि जब हम किसी दो नंबर को, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो दोनों नंबर क्या हो गया कि उसका जो प्रोडक्ट निकल रहा है, सपोज 6 मैंने दो नंबर को मल्टीप्लाई किया 3 and 2, तो 3 और 2 इस नंबर के क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए, क्योंकि 6 जो है 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 जो है 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो जब भी हमारे पास कोई नंबर है और उसे हम डिफरेंट नंबर से डिवाइड करके देख रहे हैं और वो एग्जैक्टली डिविजिबल है, देन वी कैन से दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन नंबर। अंडरस्टूड? तो आज हमने जितना टॉपिक पढ़ा है आपको रिवाइज करना है, कॉपी में लिखना है, ठीक है, और उसको एग्जांपल सॉल्व करके देखना है। सर उससे रिलेटेड एक वर्कशीट आपको कर देंगे, ठीक है, गूगल क्लासरूम में। एंड द मैसेज फॉर पेरेंट्स आल्सो कि डियर पेरेंट्स, आप ये जो टॉपिक अपने बच्चों को दिखाइए, उनसे करवाइए, ठीक है, और जो वर्कशीट है वो सॉल्व करवाइए। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टीज सो यू कैन contact me, okay? So today's topic here, we'll end today's topic here. Bye everyone, bye children.